Good afternoon, Ankita. Good afternoon. How are you feeling today? I'm good, sir. Thank you. Professional communication and privileged communication, what is the difference between the two? I believe professional communication would be with regard to a client and the profession that is a client between the client and the person in charge and Profession in person in which profession? sir, the profession which requires privacy, such as lawyers, doctors. Innovate one, like? So lawyers, doctors. Yes. Profession that requires that communication be the privacy be maintained. I believe it is the professional communication. There are some exceptions to it also. Sorry, sir. There are some exceptions to it also. Under Evidence Act, yes, sir. There are exceptions to professional communication. Which section deals with it? Sir, I am not sure, but I believe it's section 126 of the Indian Evidence Act. Not 135 of what is this new act? Bharatiya Sakshya Adhiniyam? I am sorry, sir. I am not well versed with the new act sections. Why? When is your examination? Interview? It is on 23rd November. So if you are not well versed in the new acts and the provisions that they have and the changes that they have brought in, and you will feel difficulty in facing the interview board. So I believe with time I will be well versed with the new ones. Because you have to go through these. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Privileged communication. How would you say? 130? 135 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam. 135. I think 133 and 135. Okay, sir. 133. And 135. And profession, this is 132. 132. Right? Yes, sir. तो privilege क्या होता है? I'm not able to recall. आप बता दिया, पर वो तो बता दिया आपने. Yes, sir. Privilege not waived by voluntary evidence. And 135 is production of title deeds of witnesses, not a party. That means it can be a privileged document between two persons, only for your eyes only and for ears only. Yes, sir. ठीक है. प्रोफेशन में क्या होता है कि वो डाइवर्ज कर सकता है कि थोड़ा सा जो कि उसको हार्म ना करता हो his client. ठीक है ना? Yes, sir. That is an exception to it. Okay, sir. अच्छा, ये आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? Yes, sir. आर्टिकल 254 क्या कहता है? What is repugnancy? It deals with repugnancy actually. Sir, repugnancy is with regards to the legislative law, wherein the center and the state makes the law. If the law made by the center will be prevailing rather than that of the state. In a situation where the state act has received the assent of the president, then the state law will prevail. So but parliament has the power to make the laws. So your answer is not complete. Okay. Yes, sir. Okay. Where the assent given by the president to a state act, the state act will prevail. Okay. Yes, sir. संजय भाई, आपने LLM भी किया हुआ शायद? No, sir. नहीं किया. अच्छा अच्छा. अब आप जरा नए तीनों के नाम बता डालिए जो नए एक्ट आए हैं. वो तीनों के नाम क्या क्या चीज है?
Yes, sir. Bharatiya Sakshi Adhiniyam will replace Indian Evidence Act. हाँ The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita will replace Criminal Procedure Code, हाँ and Bharatiya Nyaya Sanhita will replace Indian Penal Code. ठीक है, सब कब पास हुए? एक्ट का पूरा नाम लीजिए तो उसके साथ उसका सन भी बताइए। हाँ सन भी बताइए। सन भी बताइए। दीज आर ऑल पास इन 2023। 2023. हाँ ये ध्यान रखिएगा, जो FIR का प्रोविजन था पहले पुराने एक्ट में, अब नए Yes. एक्ट में किस में इंट्रोड्यूस हुआ है? यानी Sir, भारतीय नागरिक संहिता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013 में. हाँ I am sorry, sir. I am not well versed with the new ये section. बहुत जरूरी है। देखिए ये ब्रॉड प्रोपोजिशंस तो रट के रखिए। ये 173 है 173. Yes. हैं? अब 173 के जो इंग्रेडिएंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सब टिप्स पर होने चाहिए। Okay, sir. हैं 173 में 3 चीजें आई हैं, एक ऑनलाइन FIR, Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक FIR और 0 IR. 0 FIR। ये Yes, तीनों sir. चीजें रट के रखना चाहिए आपको, तभी Okay. आप सफलता मिलेगी सब चीजों में, क्योंकि नए जी. एक्ट के बारे में सब देखना चाहिए आपको। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? So the main difference between cognizable offense and non-cognizable offense is that in cognizable offense, the police can arrest without warrant and it can investigate without the permission, without the order of the magistrate. However, in non-cognizable offense, a police cannot arrest without warrant and also cannot investigate without the orders of the magistrate. अच्छा, व्हाट अबाउट 299 culpable homicide and the murder? Difference between the two, how it has been defined? So the difference between culpable homicide and murder is that of the mental element. The mental element, that is intention and knowledge, is much higher in murder than in culpable homicide not amounting to murder. Culpable homicide अब नए एक्ट में कहाँ डिफाइंड है? देखा है आपने अभी? नहीं। Sir, in the new act, section 100 is murder, हाँ and I believe, sir, section 101 is culpable homicide. 100 से शुरुआत है, उसको जी, sir. अब देखना पड़ेगा आपको। 100 से शुरुआत है, फिर 101 में है, एक्सेप्शन है, फिर 102, 103, ऑल आर इम्पॉर्टेंट। पनिशमेंट फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 103 ऑफ द Yes, भारतीय न्याय संहिता। sir. कल्पेबल होमोसाइड इज 102। Yes, sir. ठीक है, ये सब चीजें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। कल्पेबल होमोसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ ए पर्सन अदर देन पर्सन whom डेथ वाज इंटेंडेड। अब इसकी डेफिनेशन पूरी देखनी पड़ेगी कि हाउ कल्पेबल होमोसाइड अमाउंट्स टू, और उसके बाद पनिशमेंट क्या है, ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ये आपके क्रिमिनल लॉ के बारे में नॉलेज बहुत कम है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अब आप एक कॉजिंग बाय डेथ बाय नेग्लिजेंस होता है, जैसे Yes, मोटर sir. व्हीकल्स का होता है, कुछ होता है, वो कहाँ डिफाइंड है? सर, इंडियन पीनल कोड में तो सेक्शन 304A है. आई एम नॉट श्योर अबाउट द न्यू वन. 106 ओके सर. 106 है, क्योंकि नए एक्ट के बारे में पूछेंगे ना, तो 106 है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। ओके सर. तो वो 304A जो था वो कन्वर्ट हो गया 106 में। तो इसके यस सर. बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। हुएवर कॉजेज डेथ बाय एनी पर्सन इज डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। तो जो मोटर व्हीकल्स की ड्राइविंग है रैश नेग्लिजेंट होती है, उसमें किस तरह से पनिशमेंट हो जाता है, वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी आपको। इसके बारे में आपका बिल्कुल छूटा हुआ है। अच्छा, यस सर. तो आप TPC के बारे में कुछ ज्ञान है आपको? यस सर. हाँ, CPC के बारे में सूट्स फाइल जो होते हैं वो आप बताइए किस में फाइल होते हैं, क्या होते हैं, कौन सा प्रोविजन दिया हुआ है सूट फाइल होने का?
सर सूट के लिए सबसे पहले तो पार्टीज चाहिए होते हैं, तो हाँ, पार्ट ऑर्डर 1 डील करते हैं ऑफ नहीं, सीपीसी। सेक्शन कौन सा दिया हुआ है बताइए। सेक्शन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए सेक्शन 26 में दिया हुआ है नहीं नहीं कि भाई, सेक्शन 9 है, कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सूट्स अनलेस यस बार्ड। सेक्शन यस सर 9 में दिया हुआ है कि सूट्स जो है सब सेक्शन 9 में फाइल होंगे, और उसके बाद जो प्लेंट के अवर्मेंट्स होंगे उसको ध्यान दीजिए। उसके बाद क्या क्या प्लेंट के अवर्मेंट्स होंगे, ओके सर। आप जब ध्यान रखिए इस सब चीजों का। फिर आता है ऑर्डर अमेंडमेंट के बारे में। ऑर्डर 6 रूल 17। हाँ, 17, ठीक है। Yeah. अच्छा, फिर अगर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट करना हो, कॉज ऑफ एक्शन ना दिया हो, प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी ना हो, और यस सर, तब ऑर्डर 7 रिजेक्शन। हाँ, 11 में कॉज सारे दिए हुए हैं, रिजेक्शन किस में प्रीलिमिनरी होगा, दिए हुए हैं। रिजेक्शन किस में होगा। ऑर्डर 7 रूल 11। हाँ, ठीक बात है आपने। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 10 एंड 11। Section 10 is with respect to res sub judice, whereas Section 11 is res judicata. Section 11 रेस सिर्फ जुडिकाटा नहीं होता, रेस जुडिकेटा। res judicata. हाँ, Okay, sir. 10-12 बार याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। Yes, sir. Res judicata. हाँ, Res judicata, sir, is with regards to suits or issues कि अगर एक बार एक सूट फाइनली डिसाइड कर दिया एक कोर्ट ने, तो उससे दोबारा नहीं लाया जाएगा सेम कॉज और सेम इश्यूज पे या फिर सेम फैक्ट्स पे। However, res sub judice फाइन सूट्स के बारे में फाइनलिटी नहीं है। इट इज कि आपका अगर किसी दूसरे कोर्ट में भी सूट पेंडिंग है और उस पे हियरिंग हो रही है, तो वो जिस कोर्ट में आया है वहां स्टे हो जाता है। अब जैसे रेस जुडिकेटा में 8 एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। यस सर। आपको यस हर एक्सप्लेनेशन की जानकारी होनी चाहिए। यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, यस सर। इसमें कौन से में क्या दिया है, क्या सिमिलरिटी के बारे में लिखा गया है, सिमिलरिटी ऑफ द स्टेट के बारे में लिखा गया है, सारी चीजें लिखी गई है। उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। सिर्फ रेस जुडिकेटा कह के काम नहीं बन जाएगा, तो थोड़ी बहुत नॉलेज सब चीज़ों की होनी चाहिए। सेक्शन 10 की नॉलेज होनी चाहिए, सेक्शन 11 की नॉलेज होनी चाहिए, पूरी नॉलेज सब होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, यस सर। ये सब चीज़ें। एग्जीक्यूशन फिर आता है। एग्जीक्यूशन कुछ बता सकती है किस में आता है। सर एग्जीक्यूशन सेक्शन 36 ऑफ सीपीसी से डील होता है हाँ, और वो सेक्शन 74 तक जाता है, ठीक है। प्लस ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी में सारे एग्जीक्यूशन के रूल्स हैं। तो एग्जीक्यूशन के मोड्स होते हैं जनरली आपकी अरेस्ट अटैचमेंट बाय रिसीवर या फिर अरेस्ट बिफोर जजमेंट, सॉरी अटैचमेंट भी अरेस्ट। तो होता है, मेन अटैचमेंट तो। यस सर। अटैचमेंट बिफोर और आफ्टर दोनों हो सकता है। यस सर। यस, मिस्टर जस्टिस हरकौली साहब, ब्रदर देखिए आपसे क्या पूछना चाहते हैं। इंटरोगेटरीज पढ़ा है आपने, इंटरोगेटरीज के बारे में? यस सर, ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी। एब्सोल्युटली राइट। अब एक चीज ये बताइए कि मान लीजिए किसी केस में एक ही प्लेंटिफ है, उसकी डेथ हो जाती है, एक डिफेंडेंट्स एक से ज्यादा है, मल्टीपल डिफेंडेंट्स है, ऑल राइट। यस सर। एक डिफेंडेंट ये एलेज करता है कि साहब इंटर सी हमें भी तो कुछ डिस्प्यूट है डिफेंडेंट्स में, तो प्लेंटिफ के मरने पे तो अगर मान लो उसके जो एलआर्स हैं वो सब्स्टिट्यूट नहीं किए जाते हैं, तो सूट अबेट हो जाएगा। तो यस ऐसे सर। केस में जो डिफेंडेंट क्लेम कर रहा है कि साहब इंटरसी डिस्प्यूट है डिफेंडेंट्स में, वो ऐसे सूट में उसके पास क्या रेमेडी ओपन रह जाती है? सर ट्रांसपोजिशन। हाँ हाँ। डिपेंडेंट अपने आप को जिसके पास बहुत ज्यादा इश्यूज हैं वो अपने आप को प्लेंटिफ के जगह पे ट्रांसपोज कर सकता है। ऑर्डर 23 रूल 1A। आई एम नॉट रॉन्ग। और गार्निशी साहब क्या समझती है? सॉरी सर। हु इज अ टर्म हु कैन बी टर्म्ड एज अ गार्निशी? गार्निशी ऑर्डर, यस सर, जजमेंट डेटर्स डेटर, उसके अगेंस्ट गार्निशी ऑर्डर दिया जाता है इन एग्जीक्यूशन में। हम्म
वेरी गुड। तो अगर कोई सूट अबेट हो गया है तो सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जो लोग क्लेम कर रहे हैं अपने आप को एलार्स ऑफ द डिसीज प्लेंटिफ, क्या वो फ्रेश सूट ला सकते हैं या उनके पास क्या रेमेडी ओपन होती है? आई एम सॉरी सर, बट टू माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग अबेटमेंट के बाद फ्रेश सूट नहीं अलाउ होता है। क्यों नहीं होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट? सर, civil suits is mainly a dispute between two. डेथ होती है, Sorry sir. डेथ होती है, सोल प्लेंटिफ की जब डेथ होती है Yes sir. तो प्रॉपर पब्लिकेशन कराया जाता है कि उसकी डेथ हो गई है, जो उसके एसेट्स में इंटरेस्टेड हो लीगली, he can come Yes. before the court and the LRs choose not to come before the court. Yes sir. तो लिटिगेशन कैसे एंड होगा? वो 10 साल बाद सेम कॉज ऑफ एक्शन दूसरा सूट ला सकते हैं। इस प्रिंसिपल पे वो सब्सीक्वेंट सूट बार किया गया है। Yes sir. You should try to understand कि भाई what is the reason behind that provision. You will be able to Okay, sir. understand the exact connotation and the meaning of the provision better that way. Yes. वैसे you are very well versed in law and I think there are reasonably good chances of your succeeding in the interview. Thank you sir. ट्राई रहिए, ऐसे ही मेहनत करती रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you sir. My opinion too. Opinion too. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Best of luck. Thank you sir. थर्ड पैनलिस्ट की राय भी तो सुन लीजिए जाने से पहले। Yes sir. I'm आप still in. आप बस जरा सा स्टडी करती रहिए, प्रोविजन आपको सब पता है, लेकिन उसके अंदर की जो गहराई है उसकी स्टडी करते रहिए, क्योंकि जैसे आपने रेस जुडिकेटा के बारे में बता दिया, सब चीजें ठीक बताई, लेकिन जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है एक्सप्लेनेशन 1 to 8 तक, इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको। वैसे भी जो आपने उसका आंसर किया था उसमें आपको करना चाहिए, जैसे नेसेसरी इंग्रेडिएंट होता है कि अब द facts materially and substantially in issue. You हाँ। failed to Yes. mention that. Yes sir. That was somewhat an incomplete answer. लेजिस्लेचर के जो वर्ड्स हैं वो ध्यान रखकर पढ़ लीजिए, गप मत मार दीजिए वहां पर कि ऐसा होता है, लेजिस्लेचर के वर्ड रखिए उस पर। Okay sir. ओके, थैंक यू, जाइए, Okay. गुड लक।